नेक्स्ट टॉपिक है डे एंड नाइट. द अर्थ हैज़ टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स. रोटेशन, दैट इज रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द इट्स ओन एक्सिस, जो एक्सिस से टिल्टेड और इसके अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है. रेवोल्यूशन, दैट इज मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, और यहाँ पे एक सन है उसके अराउंड भी अर्थ मूव कर रही है. तो दो टाइप का, एक अपनी एक्सिस पे मूव कर रही है ऐसे, और एक सन के अराउंड भी. तो इसको रेवोल्यूशन बोलते हैं, और एक्सिस पे घूमने को रोटेशन बोलते हैं. द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट. मतलब कैसे रोटेट करती है? वी. याद रखिएगा, वी रोटेट करती है वी, वेस्ट टू ईस्ट. द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज फिनोमिना ऑफ द डे एंड नाइट. द अर्थ इज tilted on its axis at an angle 23.5 degree, as result of which duration of day and night is not always equal. Okay, however the duration of day and night is always equal on the equator, as the sun always shines vertically overhead on the equator. Between 21st March to 23rd September, the sun shines between the equator and Tropic of Cancer, as a result of which the northern hemisphere receives more than 12 hours of the sunlight. Thus, the days are longer and nights are shorter in the northern hemisphere during this time. Similarly, the 23rd September to 21st March, the sun shines between the equator and the Tropic of Capricorn. As a result, southern hemisphere receives more than 12 hours of the sunlight. Basic, as one moves closer to the South Pole, the duration of the days keep on increasing. During this period, the South Pole witnessed 6 month long daytime. Then Earth revolves around the sun in an elliptical orbit and completes one revolution around the sun in approx 365 days and 6 hours. याद रखिएगा. इसीलिए हर 4 साल पे एक एक्स्ट्रा डे आ जाता है, क्योंकि 6 आवर एक्स्ट्रा है और जोड़ते जोड़ते 24 घंटे हो जाते हैं, तो लगभग एक दिन बढ़ जाता है. एग्जैक्टली एक नहीं होता, थोड़ा कम होता है, बट लगभग मान के चलिए. Thus, because the revolution and the axial tilt, the angle of the insolation changes throughout the years. सोल्स्टाइस अकर्स ट्वाइस ए ईयर. सोल्स्टाइस 2 बार होता है. बेसिक चीज ये तो पता ही आपको. ऑन 20 समर सोल्स्टाइस कब होता है? 20 या 21 जून. द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर हेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इसी दिन हम इसीलिए योगा डे भी सेलिब्रेट करते हैं. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द समर सोल्स्टाइस. ऑन 20 to 21 जून, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस द लेंथीएस्ट डे. The phenomena is also known as the June solstice. During this time, the southern hemisphere witnessed the shortest day. Okay, winter solstice में क्या है? On 21st and 22nd December, the sun shines vertically overhead the Tropic of Capricorn. This phenomenon is called the winter solstice. During this time, the southern hemisphere witnessed the lengthiest day, and northern hemisphere witnessed the shortest day. ओके मतलब सिंपल बात है कि साउथ जब विंटर सोल्स्टाइस होगा तो साउदर्न हेमिस्फीयर में बड़ा दिन होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में छोटा होगा. सबसे सिंपल. दिस फिनोमेना इज आल्सो नोन एज द दिसंबर सोल्स्टाइस. ओके, ऑन 20 या 21st मार्च द वर्टिकल इक्विनॉक्स अकर्स, एंड ऑन 20 या 22nd या 23rd दिसंबर द ऑटम इक्विनॉक्स. ड्यूरिंग दिस टाइम द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज इक्वल ड्यू टू द रिवोल्यूशन and axial tilt of the Earth, the Tropic of Cancer, 23.5 degree north latitude in the northern hemisphere, starts getting oriented towards the sun. From the 21st March, by 21st June, the sun is vertically overhead the Tropic of Cancer. The size of the shadow of any object depends upon the size of the object. The distance from the sun and the angle it creates with respect to the rays of the sun. The size of the shadow will smallest when the angle is least. Basic बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि the size of the shadow will be the smallest when the angle is least. Okay. उसके बाद when the angle created 0 degree there will be no shadow. बेसिक है कि अगर मान लो 0 डिग्री एंगल बन रहा है आपके सन का आपसे, तो वहाँ पे कोई शैडो क्रिएट नहीं होगी. क्यों नहीं होगी उसको बात समझिए. आप ऐसे खड़े हो 0 डिग्री का मतलब कि सन आपके जस्ट ऊपर आए तो कोई शैडो नहीं बनी, क्योंकि पॉइंट बन जाएगा. अगर थोड़ा सा एंगल बनेगा यहाँ पे, जो भी एंगल बनेगा, तो जितना ज़्यादा एंगल बनेगा उतना ज़्यादा यहाँ है तो ज़्यादा शैडो बनेगी. ओके, बेसिक सी. द शैडो फॉर्मेशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल बी एट मिनिमम ऑन 21st जून. क्यों? इसलिए शैडो फॉर्मेशन मिनिमम होगा क्योंकि सन आपके डायरेक्टली ओवरहेड पे रहेगा. और यही साउदर्न हेमिस्फीयर में कब होगा? समर विंटर सोल्स्टाइस, जो कि दिसंबर के आसपास होता है ना. अभी आपने डेट देखा यहाँ पे 20 से 21 दिसंबर विंटर सोल्स्टाइस. ओके.
देन ऑन विच डेट डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन, किस डेट पे होता है डे नाइट इक्वल ड्यूरेशन का? देखो हम जो भी बात करेंगे यहाँ पे 23 सितंबर की बात कर रहे हैं। इक्विनेक्स द टू पीरियड्स इन द ईयर व्हेन डे एंड नाइट्स आर इक्वल अकर्स, कब होता है? 21 मार्च से 23 सितंबर, 21 मार्च एंड 23 सितंबर इस पे इक्विनेक्स होता है इन दोनों डेट पे। वेयर आर डे एंड नाइट इक्वल थ्रू आउट द ईयर, कहाँ पे होते हैं? सबसे आसान इक्वेटर पे होगा। देन अगला, एट द टाइम समर सोल्स्टाइस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लेंथ ऑफ द डे विल बी 12 आवर्स एट द कब? इक्वेटर पे, ओके, क्योंकि इक्वल हो जाएगा ना दोनों। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स, कब होगा? सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ द जून, ओके। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब अपने यहाँ जैसे 21 जून, ये 21 जून की बात कर रहा है, ओके। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है 21 जून। शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑन, कब होगा? 22 दिसंबर, क्योंकि 21 जून को तो लॉन्गेस्ट होगा। देन विच इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, अब ये हमारे यहाँ की बात कर रहे हैं। देखो नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फीयर नहीं दिया है, बट अगर ऐसा कुछ नहीं दिया था तो उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अपने इंडिया की बात के कॉन्टेक्स्ट में कंसिडर करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग 21 जून हो जाएगा, ओके। विच आर द फॉलोइंग द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर? 21 जून। अगेन, longest day in the southern hemisphere 22nd December. On which of the following dates your shadow at the noon is smallest, कब होगा? जब सन हमारे टॉप पे होगा, सिर पे होगा, 21 जून को होगा ऐसा। देन समर सोल्स्टाइस अकर्स एवरी ईयर ऑन, कब होगा? 21 जून। ऑन 21 जून द सन डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एट द आर्कटिक सर्कल। देखो इसको बात समझिए, कहाँ पे सन सेट नहीं होगा। अब देखो 21 जून में क्या होगा, ये ऐसे बनाइए, आर्कटिक यहाँ पे है, अंटार्कटिका यहाँ पे है, ये अंटार्कटिका है, ये आर्कटिक है। अब देखो सन कह रहा है सेट नहीं होगा, इसलिए सेट नहीं क्योंकि सन इस साइड है, कहीं यहाँ पे कहीं सन साइन कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास, तो यहाँ पे सन सेट नहीं होगा, ओके। सन सेट कहाँ पे होगा? आर्कटिक पे होगा, अंटार्कटिक पे होगा, आर्कटिक पे सन सेट नहीं होगा। बेसिक यही चीज़ पूछ रहा है यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसी को घुमा फिरा के पूछते हैं आप, ओके। देन अगला है, देखो अगेन वही घुमा फिरा के, ऑन 21 जून एवरी ईयर विच आर द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स, कहाँ पे है? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल। तो देखो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ की बात कर रहा है। विच आर द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस द सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स, तो एक देखो ट्रॉपिक ऑफ 21 जून की बात कर रहा है, 21 जून पे कहाँ पे होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में होता है, तो ये कैप्रिकॉर्न हट गया, इसको काट दो। 3 काटते ही आपने काट दिया, 2 सही है, तो 2 या 4 में से कोई एक। अब आर्कटिक सर्कल, देखो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था उसमें भी देखिए, सन डज नॉट सेट, मतलब यहाँ पे सेट नहीं होगा, तो मतलब यहाँ पे साइन करेगा, तो वही चीज़ पूछ रहे हैं। सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स कहाँ होगा? आर्कटिक सर्कल पे होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को होगा। 2 और 4 करेक्ट ऑप्शन है, ओके। तो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी खूब पूछता है, इसका फेवरेट टॉपिक है। देन अगला 2025 का क्वेश्चन है, साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट ए शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन द अर्थ रोटेशन एक्सिस। एकदम बेसिक चीज़ है, एकदम मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है, और एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ओके। देन सोलर फ्लेयर एसोसिएटेड विद कोरोनल मास इजेक्शन बोम्बार्ड द अर्थ आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर विद ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसको देखते हैं थोड़ा। एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर, ओके। देखो पोलर आइस मेल्ट होगी तो इक्वेटर की साइड जाएगा, एकदम बात सही है। अब इसमें कह रहे हैं कौन सा सही है। देखो बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। अब देखो दोनों स्टेटमेंट ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अब यहाँ पे स्टेटमेंट 1 को कौन सा एक्सप्लेन कर रहा है? सोलर फ्लेयर कोरोनल मास इजेक्शन बोम्बार्डेड द अर्थ आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर विद ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ द एनर्जी, ओके। इसके कारण अर्थ की रोटेशन एक्सिस वगैरह जो शिफ्ट हो, देखो अब क्या इसके कारण शिफ्ट होगा? नहीं होगा, लेकिन जो पोलर आइस मेल्ट होता है इसके कारण शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि ये अभी का फिनोमिना है और ये तो नेचुरल है, नेचुरल कारण अगर होने लगे सब कुछ ऐसे ही शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो इनमें से कोई एक एक्सप्लेन करता है, एक नेचुरल है, ये नेचुरल है और ये मैन मेड है। तो मैन मेड के कारण हो सकता है, नेचुरल कारण थोड़ा सा मुश्किल है, तो इनमें से कोई एक एक्सप्लेन करेगा और दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा।